स्टार्ट करें, क्लिक इसको होने दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we know in the name of Allah, we begin with His blessed name and we praise Him and we glorify Him as He ought to be praised. Who? That is Almighty Allah Subhanahu wa Taala. So let's start. This is we are right now learning class 8. Okay. And this is the some features we are learning in the class 8 and we are continuing now with these points. So let's start with the first point. Ovary. Ovary is a female reproductive organ. And what is the oviduct? Let me explain. Suppose this is an ovary and this is going to make the ovum. Ovum means eggs. So this is an organ which is what is an ovary. So this organ is going to release the eggs or ovum. Okay. How it can release in the reproductive system with the help of some kind of tube-like structure, which is called as oviduct. That is it. Then it is present on which side? Almost right side. Completely atrophied in nature. That means they are fully suitable into the female reproductive system. And another point we can see, copulatory organ. What do you mean by copulatory organ? Which is responsible helping the reproduction, that the male sperm will be released into female reproductive system. That is called as copulatory organ present in only male. And this is the symbol of male. ये मेल का सिंबल है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं और फीमेल को जो है इससे एक्सप्रेस करते हैं. ये सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. नेक्स्ट वी कैन सी दैट ये चीजें कॉपरेटरी ऑर्गन इट विल बी एब्सेंट इन दिस बर्ड्स, डक्स, गीज एंड रेटाइल्स. राइट. इसमें जो है ना कॉपरेटरी ऑर्गन क्या होता है? एब्सेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल बर्ड्स आर मोस्टली oviparous, means they are going to lay the eggs. Eggs are megalesical, right? Eggs are megalesical. So what do you mean by this? The eggs of this bird will be always having yolk. Yolk यानी जो आप अंडा खाते हो जो पीला रहता है ना उसको yolk बोलते हैं, albumin. And their eggs, these eggs are also called as cladoid eggs. These birds' eggs are also called as cladoid eggs. What do you mean by cladoid? Reduces free exchange with the environment. मतलब अंदर का जो चीज है वो बाहर जल्दी से चला जाएगा तो अंदर जो बच्चा तैयार होना वो मर जाएगा. इसलिए ये खास किस्म की जो खासियत है कि अंदरूनी मटेरियल बाहर नहीं जाना चाहिए. इसलिए ये क्लोडोइक एनिमल्स है, क्योंकि अगर अंदर का मटेरियल बाहर चला गया तो अंदर का प्रिपरेशन अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट. नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. What do you mean by that? मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा. मतलब फीमेल का जो एग है it will be waiting inside the female reproductive system and the male sperm is going to come inside the female reproductive system and fertilize it over there, and then that stage will be called as after fertilization zygote, because sperm just like making like a worm and this is a ovum. So both is going to be fused. After that it is called as fertilization. Zygote will become, so zygote is nothing but it is a two nucleus combination, because one nucleus has come from sperm, another has come from ovum. Got it everyone? Clear? यही है fertilization is cleavage. अब ये जो zygote है ये zygote और आगे डेवलप करेगा. मतलब अभी ये 4 बन जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या बनेगा? 8 बन जाएगा. इस तरीके से एवरी टाइम इट विल बी डबल. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, डबल सेल्स हो रहे हैं, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, दिस इज कॉल्ड एज cleavage. Got it? And this cleavage is in this birds is always meroblastic and discoidal as in reptiles. मतलब reptiles में लगभग birds का मैचिंग हो रहा है. ठीक है. मैचिंग होने का मतलब ये नहीं है कि reptiles ने bird को पैदा किया, बिल्कुल मतलब ये नहीं है. समझिए आप, राइट? मिसाल के तौर पे कुछ एनिमल्स है जैसे मंकीज है. मंकी अगर मुस्कुराए तो इसका, हम लोग भी मुस्कुराते हैं तो इसका मतलब वो हमारे खानदान में होंगे नहीं ना. अंडरस्टैंडिंग है सब. वैसे वो बेवकूफी हो. हैचिंग्स आर एल्ट्रिशियल. हैचिंग्स आर एल्ट्रिशियल. हैचिंग का मतलब मालूम है अंडे का टूटना. तो ये एल्ट्रिशियल्स का मीनिंग ये है, अब गौर करें, अनडेवलप्ड
and require care and feeding birds. मतलब जो इस टाइप के अंडे होते हैं, जो बर्ड जैसे उड़ने वाले बर्ड जो है एल्ट्रिशियल जो है एग्स देते हैं। जितने भी उड़ने वाले बर्ड्स हैं किस टाइप का एग्स देते हो? एल्ट्रिशियल। तो क्या है एल्ट्रिशियल का मतलब समझिए, नीचे मैंने पॉइंट दिया आपको समझने के लिए। ये एग्स अनडेवलप रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं, और इन अंडों को जो है माँ जो बर्ड है उसका केयर और फीडिंग मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चों को। जब वो बच्चे चूजे बाहर भी निकल जाते हैं तब भी तुरंत छोड़ नहीं सकते बच्चों को। द मदर हैज टू टेक केयर। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखिए दूसरे अंडे प्रीकोशियल। जो प्रीकोशियल बर्ड्स होते हैं उनको वो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, उड़ नहीं सकते, मुर्गी। तो इन लोगों का जो कंडीशन होता है हैचिंग ऑफ एग्स, डायरेक्टली एडवांस स्टेट में बाहर आते हैं, अंडे से बाहर एडवांस स्टेट में आते हैं। इनको केयरिंग की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप को खा सकता है, खुद शुरू कर देंगे खाना। डिड यू अंडरस्टैंड? तो केयरिंग किस अंडों में लगा? एल्ट्रिशियल। जबकि प्रोकोशियल में जो है केयरिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर फ्लाइटलेस बर्ड के एग्स। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स। वी कैन सी कोरस is a scientific name of crow, and the pigeon scientific name of that Columbia, and Pistalicula, right, that is the name of parrot, and pavo, that is the peafowl, and Aptenodytes, that is the name of penguin, and Neophron is the name of vulture, and Coraceus bentagiensis, okay, Coraceus bentagiensis, right, that is the name of blue jay, state bird of Andhra Pradesh, and Struthio, that is the name of Australia. Next point, let's come, कुछ ऐसे भी बर्ड हैं जिनको lizard bird बोलेंगे। Some birds are called as lizard bird, let me tell you। उनमें कुछ है ना, वो कुछ थोड़े lizard के जैसा उनके चेहरे पे दिखेगा, कुछ शेप, जैसे उनके पैर थोड़े से जैसे छिपकली के पैरों के ऊपर ऐसा रहता है, कुछ रहता है कि नहीं पैरों में? तो ये चीज आपको बर्ड में भी मिलेगा, ये है मैचिंग। तो मैंने अभी बोला ना, मंकी अगर स्माइल कर रहा है हमारे जैसा तो वो हमारे बिरादरी का नहीं होगा, वो तो खाली है, वो सेम हमारे जैसा एक्टिंग कर रहा है। तो डज इट मीन दैट ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम अस? सेम वैसे। तो यहाँ पर समझिए कि इसी तरीके से एक रिसर्च मिला जिसमें ऐसा बर्ड का हड्डी मिला जिसका नाम था आर्कियोपेटेरिक्स एंड लिथोग्राफी का। तो ये जो बर्ड था इसमें कुछ फीचर्स बर्ड्स के थे और कुछ फीचर रेप्टाइल्स के थे, मतलब छिपकलियों के। ठीक है, दोनों फ्यूज हुआ एक एनिमल था, मतलब पंख उसके जो है बर्ड्स के जैसे थे, लेकिन पूरा बदन जो है कुछ छिपकली के जैसा था, मुंह भी उसका और पैर भी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वैरायटी ऑफ एनिमल हो सकते हैं, तो वो तो अपने माँ बाप से ही पैदा होगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि रेप्टाइल ने बर्ड को जन्म दिया, बर्ड ने इंसान को जन्म दिया, इंसान ने मंकी को दिया। ये दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग फिलॉसफी। बेशक ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा बॉडी हो जिसमें स्पाइडर का भी नेचर हो, जिसमें जो है रेप्टाइल्स का भी नेचर, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि अर्थ के अलावा जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसमें कौन से मखलूक रह रहे हैं। अग्री? यस। तो वो मखलूक एक अपने आप में एक अपना एक न्यू यूनिक नॉलेज होगा, बट इसका मतलब ये होगा क्या कि उसको जो है किसी दूसरे स्पीशीज ने पैदा किया। एलिफेंट ने डायनासोर को पैदा किया, या डायनासोर को जो है अमीबा ने पैदा किया था। कैन इट बी पॉसिबल? नॉट एट ऑल, बिकॉज देयर इज द वर्ड इन कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग दैट आई हैव क्रिएटेड ऑल द क्रिएशन बाय द वाटर। तो अल्लाह वो कह रहा है वो सिर्फ अर्थ के लिए, हो सकता है दूसरे प्लैनेट पे अल्लाह ने वाटर से ना पैदा किया हो। अगर जुपिटर की बात हो तो जुपिटर मटेरियल से पैदा किया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉमन सेंस। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। इट पॉसेस सम रेप्टिलियन एंड एवियन कैरेक्टर्स। एवियन मतलब एव्स। इसी वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब इस बर्ड को देख के हमें छिपकली भी याद आती है और बर्ड भी याद आता है। जैसे कुछ किस्म के इंसान होते हैं, देखिए उछल कुछ ज़्यादा करते हैं तो बोलते इसको देख के बंदर याद आता है। ऐसा ना बच्चों को देखिए बंदर के जैसा उछल, तो क्या वो बंदर हो गया? सो दिस इज रैटिटी, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैलियोग्नेथे। दैट इज कॉल्ड एज पैलियोग्नेथे, राइट, एंड दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस टाइप के बर्ड जो उड़ नहीं सकते, जो जमीन में फ्लाइटलेस बर्ड है, दे आर मॉडर्न फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स। प्रेजेंस ऑफ इनके पंख बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है पंख की, तो फिर पंख छोटे हो जाएंगे,
लेकिन शरीर जो है, बॉडी जो है, बहुत बड़ा एंड स्टर्नम विदाउट कील, ओके, एंड मेल विथ पेनिस. Penis is a sexual organ which is required for the reproduction and also to remove out the waste. भाई एक्सक्रीटा है बॉडी के अंदर, अगर वो ऑर्गन ना हो जो निकाले इसको तो क्या हो, कोई जिंदा रहता नहीं. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है. एंड बेशक दैट इट शुड बी मोर acquired knowledge given to the human being that they should be hidden as like it is a shame, है कि नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं. आगे नहीं, क्योंकि हमें समझ दिया, उन जानवरों को समझ, लेकिन इंसान भी वही काम करे तो फिर जानवर से भी बदतर है, यस सर, और अपना ही नुकसान कर रहा है, किसी और का नहीं, क्योंकि उसके अमाल में लिखे जा. नॉट प्रोसेस सिरिंग्स, सिरिंग्स उनमें नहीं है बिल्कुल, क्लैविकल्स एंड प्रीम ग्लैंड्स that is also absent, and these are the few examples which I have given you here. That is Struthio camellus, मतलब ऊंट के जैसा उसका गर्दन, इसलिए उसका नाम ले दिया कैमलस. तो वो कौन सा ऑस्ट्रिच है, अफ्रीका का ऑस्ट्रिच, ठीक है. एंड दिस इज रेया, राइट. रेया इज अ अमेरिकन ऑस्ट्रिच एंड कीवी इज अ नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड. So thank you so much.